So this video is on equivalent circuit of single phase induction motor based on two double phase revolving theory. So जब हम equivalent circuit of single phase induction motor for according to double phase revolving theory, सो उस अकॉर्डिंग देखें तो हम सबसे पहले अगर किसी भी चीज़ का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है सो व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट वी हैव टू इंट्रोड्यूस ऑल दी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस component, reactant component, all the components we have to introduce. So first one is R1M. This R1M represent, or only R1 represent the stator resistance. So it is of main winding. Then again we have X1M, that is representing stator reactance for main winding. XM, only XM represent magnetizing component. Okay, then afterward we have R2 dash, X2 dash. These both dash represent that we are taking the resistance from secondary to primary side. And if we are representing R1 dash, if I write here R1 dash, that means I am transferring my resistance from primary to secondary side. So here we are actually sending the resistance from secondary to primary. So we have used R2 dash or X2 dash. This R2 dash represent the rotor resistance referred to, we are referring it to primary. Okay, similarly it is rotor reactance referring to primary. So these are all the 5 components using which we will define our equivalent circuit. So first of all, taking R1, X1, then we have XM, then we have R2 dash and X2 dash. So here we have a supply voltage, then we have R1, X1 representing the stator. Here we have a XM. See, this equivalent circuit is similar to that we have learned in a transformer case. So in this XM, how we derive this XM? For a transformer, we know we have a two kind of currents. For I naught, it is resolved further into a working component and magnetizing component. This magnetizing component has XM as its reactance, which is termed as magnetizing reactance. Okay, so ये magnetizing reactance को ही क्यों लिया? Because we are ignoring, we are assuming that this R naught is very small in comparison with XM. Hence we are only taking XM. Now this is R2 dash and X2 dash. फिर से एक बार देख लेते हैं. जिस तरह रोटर का हम सर्किट बनाते हैं वो totally similar to the transformer circuit, because this is similar to transformer, like we are mutual relation between phase stator and रोटर, मतलब ये मैग्नेटिकली लिंक है लाइक अ ट्रांसफॉर्मर. दैट इज़ वाई हम यहाँ पर एक्सएम तो सिमिलर उसी की तरह. अब ये स्टेटर है, रोटर है, सो बोथ ऑफ देम आर पैरेलल, हेंस वी आर रिप्रेजेंटिंग इट इन अ पैरेलल फॉर्म. अगर हम ट्रांसफॉर्मर का देखें, सो this was how the secondary of the transformer was represented in equivalent circuit. But now we only have XM, so we can draw it parallel to representing stator is parallel to rotor, rotor is parallel to stator. So this is all about a equivalent circuit of a single phase induction motor. Also, जो हमने मैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट लिया, समटाइम्स इट इज़ बिकॉज ऑफ द एयर गैप प्रेजेंट बिटवीन, और वी कैन ऑल्सो से द रिएक्टेंस बिकॉज ऑफ द एयर गैप प्रेजेंट बिटवीन स्टेटर एंड रोटर. आई एम टर्मिंग इट एज SNR, that means stator and rotor. See, as we know from double field revolving theory that it is bifurcated current. We have two components, forward current and backward current. So what we actually denoted in double phase rotating theory, that stationary pulse rating, stationary can be revolved into two fluxes, that is forward and backward flux. या बोले कि दो पल्स, जो पल्स रेटिंग हमारे पास फील्ड है उसको, मैग्नेटिक फील्ड को, उसको दो फील्ड में कर सकते हैं, फॉरवर्ड फील्ड एंड बैकवर्ड फील्ड. सो हमने क्या देखा कि हमारे पास जब डबल फेज रिवॉल्विंग थ्योरी है तो हमने बोला है कि स्टेशनरी पल्स रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी बाइफर्केटेड इनटू टू अदर मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड
बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब अगर हमको पल्स रेटिंग स्टेशनरी पल्स रेटिंग के थ्रू हमें इक्विवेलेंट सर्किट करना है, तो मतलब हमारे पास दो होना चाहिए, एक तो फॉरवर्ड फील्ड के लिए और बैकवर्ड फील्ड के लिए। क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड मतलब क्या, कि एक फील्ड है जो एक डायरेक्शन में है, तो उस अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी फील्ड है। सो अब हम वापस से अपने सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। इसी में बस हमें क्या करना होगा, हमें सेपरेट फॉरवर्ड फील्ड के लिए बनाना होगा और बैकवर्ड फील्ड के लिए बनाना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा फॉर अ स्टेशनरी और रोटर पार्ट, स्टेटर पार्ट, R1N X1M। ओके, अब जो यहाँ पर हमने मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट लिया है, उसके थ्रू हम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट देन इट इज़ इन पैरेलल विथ R and X2। सिमिलर देखिए यहाँ पर R और X2 डैश गए, तो इसको अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा फील्ड्स हैं, दो हैं, तो हमने बोला कि उसमें इक्वली डिवाइड हो गया मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एंड रेजिस्टेंस एंड ऑल दी रेजिस्टेंस पार्ट एंड रिएक्टेंस पार्ट। तो R2 डैश, ये तो डैश डैश आएंगे क्योंकि हमने उसको प्राइमरी साइड में किया है, और ये XM/2 आ जाएगा। सिमिलरली बैकवर्ड के लिए देखते हैं, तो ये आ जाएगा R2-2, X2-2 एंड ये ऐसे। सो ये तो हम अगर बोलें कि इंड्यूस वोल्टेज एंड इंड्यूस करंट, तो VMIM से भी, या अप्लाइड भी बोल सकते हैं। अब ये हमारा इंड्यूस नहीं बोलेंगे, अप्लाइड ही बोलेंगे। इंड्यूस तो जब हम अप्लाइड के अपोजिट डायरेक्शन के अपोज करते हुए कुछ इंड्यूस होता है तब बोलते हैं। तो VM है सप्लाइड वोल्टेज। तो ये हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड फील्ड के लिए और ये हमारा हो जाएगा बैकवर्ड फील्ड के लिए। तो जो EMF होगा वो भी हाफ हाफ में हो जाएगा, या फिर EMF को हम रिप्रेजेंट करें तो EMF फॉरवर्ड कर सकते हैं और EMF बैकवर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल को हम EM या E से भी डिनोट कर सकते हैं। सो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बना। अब आगे बढ़ते हुए इस इक्विवेलेंट सर्किट में हम Z इम्पिडेंस ही लिख सकते हैं। Z इज़ बेसिकली R+jXL होता है। अब यहाँ पर फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड के लिए JF लिख दीजिए। अब देखिए, जैसे हमने कभी R और ये टर्म्स लिए हैं, तो हमें पता है कि एक टर्म इसमें स्लिप के रिस्पेक्ट में होती है। तो या तो हम, जैसे अब आप देखिए, जब I2 के लिए हमने रिलेशन लिखा था, I2 फॉरवर्ड ले लें, तो वो S/E/R2+jX2 था, JS/X2 था, ओके, अंडर रूट में। तो अब हम ये क्या कर सकते हैं, इस S को 1/S भी तो लिख सकते हैं। तो इस 1/S को हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या हुआ, ये S से कैंसिल हो गया। तो अब जब ये अंडर रूट में गया तो ये क्या बचा, I2 = E2, ठीक है। अपॉन में गया तो ये R2/S होल स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। तो जब आपने देखा तो ये R2 किसके साथ है, R2/S प्लस X2 का होल स्क्वायर। इस तरह ये हमारा मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट अ J। सो इन दिस वे वी आर रिप्रेजेंटिंग फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड के लिए R2/S प्लस X2 J वाला, ये हमारा किसके लिए आ जाएगा, फॉरवर्ड के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए, ये तो फॉरवर्ड में किसके साथ पैरेलल है, XM/2 के साथ, तो JXM/2 भी इनके साथ ऐड होगा पैरेलल में। तो देखिए, Z फॉरवर्ड, फॉर फॉरवर्ड हमारे पास इम्पिडेंस क्या होगा, वो R2/S प्लस JX2 इन पैरेलल विथ JXM। और ये JXM हमने वापस 2 से कर दिया, तो ये JXM/2 हो जाएगा, क्योंकि JXM को भी हमने हाफ डिवाइड किया है, X2/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि सबको हमने 2 में डिवाइड किया है, तो R2/2S प्लस JX2/2 इन पैरेलल विथ JXM/2। सो ये तो हमारा आ गया फॉरवर्ड के लिए। अब बैकवर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, वी नो दैट स्लिप ऑफ फॉरवर्ड एंड स्लिप ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल्स टू 2। ये हमने कैलकुलेट भी किया है। तो स्लिप ऑफ बैकवर्ड इज नथिंग बट 2 माइनस S/F, और S/F को हम 2 माइनस S भी लिखते हैं, इस SF को। सो हमने अब क्या किया, जब बैकवर्ड निकालेंगे तो R2/2 ऑफ यहाँ क्या आ जाएगा, 2 माइनस S प्लस J(X2) डिवाइडेड बाई 2 इन पैरेलल विथ XM/2 J के साथ। सो दिस वे हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड इम्पिडेंसेस के लिए ओवरऑल फॉर्म कर लिया। तो अब अगर हम सिंप्लीफाइड सर्किट देखें, कि लास्ट में अगर कंक्लूजन के तौर पे हम सिंप्लीफाइड सर्किट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग के पास अप्लाइड वोल्टेज होना चाहिए, फिर मेन करंट होना चाहिए जिसको IF बोल सकते हैं, IM बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1X1, R1M X1M भी लिखते हैं। ये क्या है, स्टेटर्स के सारे हैं। अब हमने क्या करना है कि XM वाले को
हम लोग नहीं रिप्रेजेंट करें और सिर्फ सिंप्लीफाइड में कौन से रखें, फॉरवर्ड और बैकवर्ड करें इनको, तो ये R2/2 हो जाएगा क्योंकि हमने हाफ हाफ किया है। और अगर हम R2/2 को भी सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा R ऑफ F X of F R of B X of B. So this is forward and this is backward impedances. This is forward impedance. So this is how we represent it in a simpler form. तो और EMF अगर देखें तो EMF क्या होगी, फॉरवर्ड की EMF प्लस बैकवर्ड की EMF बैकवर्ड। सो EMF फॉरवर्ड और BMF बैकवर्ड हो जाएगा। और अगर I देखें तो वो क्या होता है, V/Z, लेकिन यहाँ Z क्या क्या है, Z फॉरवर्ड प्लस Z बैकवर्ड प्लस इसका भी तो Z होगा, तो Z of 1. So this is how we represent I, E and a simplified circuit. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं बस लास्ट में। तो देखिए ये दोनों पैरेलल में थे। अब हमने क्या करना है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए रेजिस्टेंसेस इम्पीडेंसेस निकालनी है। तो ये तो नॉर्मल ये R2/2 और X2/2 इन पैरेलल विद XM/2 ये Z ऑफ B के लिए बन गया, Z ऑफ F के लिए बन गया, दोनों के लिए बन गया। लेकिन Z ऑफ B जो होता है वो 2 - S होता है, तो बस R2 की जगह 2 - S नीचे साथ में आ जाएगा और ये पैरेलल हो गया। अब सिंप्लीफाइड सर्किट में हम सब हटा के उसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड करेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिए। सो अगर हमें ऐसा लिखना हो कि हमें सिर्फ फॉरवर्ड या सिर्फ बैकवर्ड के टर्म में लिखना है तो भी हम इसको इसके थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू।